লকডাউন পিরিয়ডে তাদের সেই কর্মযজ্ঞের ধারা অব্যাহত রেখেছেন তারা। আমরা যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে ঘরে আটকে গেছি তাদের কথা ভেবে আমরা ক্রিপফিট গ্রুপ এবং ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমির তরফ থেকে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এর আগে আমরা অনেক অনুষ্ঠান করেছি, বিভিন্ন ধরনের কোর্স করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ করা হয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে, মানুষের চাহিদার কথা ভেবে 5 দিন ব্যাপী হিন্দি ভাষা বা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যোগা ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ডাইমেনশন দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছে যোগটাকে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করা বা একত্রিত করা, সবার সাথে একটা যোগের সম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে আমাদের ক্রিপফিট বা ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমির মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের আগামী প্রোগ্রামের কথা আপনারা প্রথম দিন শুনেছেন প্রদ্যুৎ বাবুর মুখ থেকে। আমরা নভেম্বর মাসে একটা অল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল একটা ওয়ার্কশপ করতে চলেছি, বড় করে সেটা আমরা আয়োজন করতে চলেছি। নভেম্বরের দিকে সেটা ঘোষণা করা হবে ঠিক সময়ে। ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমি তার সারা বছরের যে কর্মযজ্ঞ থাকে তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যে যোগ সেন্টারগুলো রয়েছে, সেই যোগ সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। সেখানে যে যোগ সেন্টারগুলো রয়েছে, যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রয়েছে, যারা যোগা কোচেস রয়েছেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে যোগ শিক্ষা প্রদান করে থাকেন, প্রত্যেকেই যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে যেভাবে আছেন সেভাবে যদি যুক্ত হন, আপনারা যদি ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমির অ্যাফিলিয়েশন গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের, আপনাদের যোগ কেন্দ্রের, আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে আপনারা যারা যোগ শেখাচ্ছেন, যোগ প্রশিক্ষক হিসাবে, যোগা কোচ হিসাবে, তাদের ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে সুষ্ঠুভাবে। এমনকি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে অ্যাফিলিয়েশন গ্রহণ করবেন, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যারা যোগা কোচ হিসাবে থাকবেন তাদেরকেও আমরা পরীক্ষকের পদমর্যাদা প্রদান করে থাকবো আমাদের সংস্থার তরফ থেকে। এই যোগ ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমি যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকবে তার জন্য ছাত্রদের যে মূল্যায়ন সার্টিফিকেট বা মার্কশিট ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমি প্রদান করবে। এটা একটা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড, এর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ প্রায় 24-25 বছর হয়ে গেল আমাদের এই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে। তাই আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে এতদিন ধরে রয়েছেন, পাশে রয়েছেন, সাহায্য করছেন, ভবিষ্যতেও যারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরা তাদের কাছে বলছি আপনারা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন বা ফ্র্যাঞ্চাইজি গ্রহণ করুন। তাহলে আপনারা আমাদের পরিবারেরই সদস্য হয়ে যাবেন। আমাদের পরিবার থেকে, আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আপনারা সবই পাবেন, সমস্ত তথ্য পাবেন। 5 দিন ব্যাপী এই যোগা ওয়ার্কশপ আপনারা মন দিয়ে শুনবেন। প্রত্যেকটি দিনের জন্য প্রত্যেকটি পদ্ধতি, বিভিন্ন মাত্রার, বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত প্রশিক্ষণ, সেই সমস্ত লেভেলের যারা একেবারে সর্বোত্তম জায়গায় রয়েছেন সেই সমস্ত প্রশিক্ষক দিয়েই এখানে আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করছি। আশা করছি আপনারা উপকৃত হবেন, ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এই আশা রেখে প্রাক পূজা সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আপনাদেরকে বহুত বহুত শুভকামনা জানাই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, যোগের মধ্যে থাকুন, আমাদের সাথে থাকুন। জয় যোগ, নমস্কার। Thank you very much. Thank you very much, Ashok sir.
আপনি ভালো কথা বলছেন যে আমাদের এখন কিপফিগার গ্রুপের থেকে যেটা অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হচ্ছে অলরেডি আমাদের আসামে তো আমরা যে দুটো অ্যাসোসিয়েশন আমরা নিয়ে নিয়েছি, একটা বরাকভ্যালি ডিস্ট্রিক্টে আর একটা আসামের জন্য নিয়েছি। আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের এখানে আসামে একটা কথা মিস করে গেছি, আমাদের হ্যাঁ। অ্যাফিলিয়েশনের লাস্ট ডেট 20 অক্টোবর করা হয়েছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন এর মধ্যে অ্যাফিলিয়েশনটা নিয়ে নিন, কারণ অক্টোবরের 20 তারিখের পরে আমাদের অ্যাফিলিয়েশন দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং যারা প্রতিষ্ঠানগত বা ব্যক্তিগতভাবে ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমির অ্যাফিলিয়েশন নিতে চান তারা অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করুন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অমল কারার মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। ধন্যবাদ। আমাৰ অসমৰ আছে, মই এছামিছত কৈছো, আমাৰ অসমৰ আছে, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু ডিব্ৰুগড় আছে, শিৱসাগৰ আছে। মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে সোনকালে ৰেজিষ্টাৰটো কৰি পেলাব মোৰ লগত ফৰ্মেটখন পঠাই দিব। এবং সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা শুনেছেন सबका बारे में बोल रहा है, जितना भी आप लोग ऑर्गेनाइजर है और जितना भी डिस्ट्रिक्ट है और जितना भी स्टेट है, आप लोग जल्दी से जल्दी आपको एफिलिएशन के बारे में जो जानकारी चाहिए अमोल करा सर है, उनका साथ आप संपर्क बना लीजिए, बना के आप जितना जल्दी सके ये एफिलिएशन ले लीजिए। एफिलिएशन लेने से क्या होता है, जो आपका स्टूडेंट जितना है, जितना लड़का बच्चा आपका साथ कर रहा है, वो नेक्स्ट ईयर से आपको एग्जाम देने लगेगा। तो इसको कंटिन्यू एग्जाम सब होगा, इसका बारे में जानकारी बाद में दिया जाएगा। एनीवे, जज आपका अशोक सर ने बहुत कुछ बता दिया। मैं नाउ आई विल रिक्वेस्ट अवर another eminent yoga coach, Mr. Joydev Modi. Joydev Modi, please come on the screen and say something about. Joydev Modi sir. Hello. Producer, good evening. Good evening, everybody. I have an announcement. Please, you can announce the message to the spectators, to the candidates, those who participated in the program today. Okay. You please announce the about our international yoga workshop will be held on 3rd week of November, and our target means also your target, everybody's target, everyone's target, that we can arrange this international yoga workshop at least 2,000 participants. Great. We are trying to accumulate 2,000 participants, at least 2,000. Please cooperate with us. I, on behalf of the Institute of Yoga Academy and Keep Fit, I request everybody, please join and cooperate the International Yoga Workshop. It will be a very, very milestone in the yoga workshop history. Thank you all. Please keep contact with us and participate in the International Yoga Workshop. Thank you, everybody. थैंक यू प्रदू सिंह सर। आप लोगों ने अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया जे लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ये 3rd week of नवंबर और में भी लास्ट वीक ऑफ नवंबर इंटरनेशनल योगा वर्कशॉप होगा। दोज हू आर इंटरेस्टेड इसमें भाग लेने के लिए आगे आप लोग बुकिंग करा लीजिएगा। क्या फॉर्मेलिटीज है बाद में आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये किस फिट ग्रुप का है बोलून फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके ये जो इंटरनेशनल योगा वर्कशॉप होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, कोई फीस भी देने का जरूरत नहीं है। सो आप लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। आप लोग जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, आप लोग जो वर्कशॉप अभी वर्कशॉप में शामिल हुआ है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है।
जे आप लोग जितना सके अपना हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से, नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो जो सुनने मांगता है, सीखने मांगता है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो हम लोग का कीप फिट ग्रुप का जो टारगेट है अबव 2000, हम 2000 बोला है, सर ने बोला है 2000, बट अबव 2000 होने से और भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग मेरा ख्याल से सब लोग ज्वाइन करना चाहिए। तो जितना भी इंटरेस्टेड है पर्सन, आप लोग सब लोग को बोलिएगा ये वर्कशॉप में, इंटरनेशनल वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे। और सब कोई को इंटरनेशनल योगा वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसका जो भी आपको इस कोर्स में शामिल होगा सबको स्पेशली सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत अच्छा बात है, आप लोग ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसमें भी अभी भी जितना भाग लिया है आप लोग को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूजा में शामिल हो जाइए, दुर्गा पूजा कीजिए, काली पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए। दिमाग में एक तो रखिए इंटरनेशनल वर्कशॉप में ज्वाइन करना है। मैं तो आज से मेरा नाम लिख दिया, जे है हम पार्टिसिपेट करेगा आज से। जो भी हो बहुत अच्छा बात है। वंस अगेन कीप फिट ग्रुप का हम सैल्यूट करता हूँ मेरा तरफ से। नेक्स्ट आवर সুকুময় দা, সুকুময় দা, हाँ একটাই রিকোয়েস্ট, একটা এর আবেদন, যেটা যারা আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে আছেন, অ্যাড হয়ে রয়েছেন এই বিভিন্ন ওয়ার্কশপে, আপনারা নিজেরা লেফট করবেন না, কারণ তাহলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন গুলো পেতে আপনাদের অসুবিধা হবে। আপনারা যদি গ্রুপ থেকে নিজেরা লেফট করেন তাহলে কিন্তু ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যাবেন। हाँ और एक बात है, आप लोग जो सेकेंड वर्कशॉप में जो शामिल हुआ थे, आप लोग प्लीज ग्रुप से बाहर में मत निकलिए। कोशिश कीजिए सुनने का, कोशिश कीजिए जानने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ग्रुप से मत निकलिए। जैसे ग्रुप से निकलने से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग दिया नहीं जाएगा, आप लोग सुनने नहीं सकेगा, फिर कोशिश करने से किसी का पास से पूछना पड़ेगा उसका बाद। इसलिए आप कृपा करके ग्रुप से मत निकलिए। तो मैं आई रिक्वेस्ट नाउ जयदेव मुद्दी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जयदेव मुद्दी सर, जयदेव नहीं सुकुमार उन्हें आसिम नहीं करो। नो प्रॉब्लम पूरा okay. Now I request today's resource person, eminent yoga personality master Shubhendu Roy from Kandi, Murshidabad, West Bengal. So please come on the screen and you will start your today's workshop, second day's workshop. Shubhendu Roy, please come. Are you present, Shubhendu Roy? Yes. Namaste everyone. Okay, you will start. Good evening all of you. So here I am, Shubhendu Roy from West Bengal, and I am giving thanks to Omar Karak and Kipti Group for giving me this opportunity to teach here. And Kipti Group, one of the best authentic yoga organization in Eastern India. They are doing very good job, and my best wishes to Keep Fit Group and the whole Keep Fit Group members. Thank you so much. So today is the second day. So I am going to teach you the yoga. So first of all, everyone sit comfortable with your front legs. Sit comfortable with front legs. And then keep your palms up on your thighs. Keep your palms up on your thighs. And make your spine erect. आपका मेरुदंड सीधा कर लीजिए. And keep your shoulder relaxed. And then close your eyes. And keep your eyes closed. And normal breathing. Breathe out. And breathe in and observe. And breathe out. Feel your breath. And then take deep breath. And breathe out. তোমার সাউন্ডটা ঠিক কাজ করছে না শুভেন্দু, সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না ভালো।
শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এখন? শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? Can I audible to you? Can I audible to you? ভালো শোনা যাবে প্রিয়ম যদি দত্ত, সবাই মিউট প্রিয়ম করে নেয়। mute পোয়েম করুন। দত্ত, পোয়েম দত্ত মিউট Audio. করুন। I request প্রিয়ম দত্ত, everyone. প্লিজ I মিউট request ইয়োরসেলফ। everyone, please mute your audio system, and if possible, just open your video. Just so ready, everyone. So once again, namaste everyone. Welcome to day 2 session. तो फर्स्ट हम करेंगे ओम चैंटिंग। तो आप लोग मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए जमीन पे। अगर आप चेयर पे हो, चेयर पे बैठ जाइए मेरुदंड को सीधा करके, और आपका जो हाथ का जो पाम है वो थाइस के ऊपर रखिए। शोल्डर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, और हम अब इनहेल कीजिए डीपली, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल। और एक बार take a deep inhale from your abdomen and then exhale. Then we will chant Ah. So inhale and open your mouth wide enough and utter the sound Ah. Inhale. Ah. Exhalation completely. Once again, inhale and utter the sound Ah. Inhale, open your mouth wide enough, and then Ah. Then we will utter Oo. So for that, keep your lips circled and inhale. Exhale completely. Once again, deep inhale and utter the sound. Now we will utter Ma. Inhale and close your both lips together and utter the sound. Once again, deep inhale from your abdomen. And then keep your palms together and rub your palms. आपका आंखें अभी भी बंद रहेगा। धीरे धीरे दोनों आपका जो पाम है उसको रब कीजिए कंटिन्यूअसली। And then gently keep your palms to your face, to your forehead, to your eyes, to your teeth, to your chin, and then relax. Open your eyes. Then we will chant Guru Pranam and the Patanjali Maharishi, the great Guru. So we will chant Patanjali mantra. So I request Samaras ji, please show the slide of the mantra. So It is already showing. yes, thank you so much. Keep your palms together and keep your palms in front of your Anahata Chakra. And then inhale and exhale. Then inhale and start. Yogena Chittasya Padena Vacha Malam
परिरक्ष च वैधकेन योपाकरोतं प्रतरन् मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिना नातोऽस्मि। Now, everyone, relax. Keep your hands down. So, योग एक जीवन जीने का कला है। योग एक महासमुद्र है और योग आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग और प्रकृति के साथ जोड़ना योग है। योग का काफी सारा डेफिनेशन है। पतंजलि का, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का, और भी बहुत से गुरुज जो बीकेएस आयंगर और पट्टाभी जॉयस और बहुत से गुरुज हम लोगों का है, बहुत से है। तो योग एज पर पतंजलि, योग सुनते हैं हमारे दिमाग में ये आता है कि आसना, पोस्चर। हम लोग यही देखते हैं कि योग मतलब कुछ आसना करना, मगर हम लोग डीपली जब जाएंगे तब देखेंगे कि योग में बहुत कुछ है, सिर्फ आसना नहीं है। योग ये साइंस है, एज पर आर्ट्स है और इसमें सब कुछ है। और योग एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो आप जो भी आपका मनोकांक्षा है, आपका जो भी है, तो आप इसमें से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। आपको मेमोरी पावर चाहिए, अब योग से मिल सकता है। आपको अच्छे बॉडी शेप चाहिए, योग से मिल सकता है। आपका कोई डिजीज हुआ है, उनको आप ठीक करने के लिए आप यहाँ मिल सकते हैं। आप फिटनेस के लिए आप यहाँ मिल सकता है। सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है योग में। तो योग एज पर पतंजलि जो है सिर्फ आसना नहीं है, इसमें अष्टांग योग में यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, 8 लिम्स ऑफ योगा, 8 स्टेप है। तो मैं कमल जी को बोलूंगा कि प्लीज शो द स्लाइड। कमल जी। Yes, just Yes, just sure. a minute. Just let me present my Yeah, screen. sure. You take your time. This one? No, not this one. Not this one. ये भी नहीं है। और स्लाइड कीजिए। हाँ, ये ठीक। तो everyone see the screen, यहाँ पर जो है वो सिर्फ आसना नहीं है, इसमें आप देख सकते हो यामा है, आसना है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है प्लस समाधि है। तो योग अब प्रैक्टिस करते हैं, मगर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ आसना प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि योग को हम थोड़ा सा जान पाते हैं। तो योग को हम अच्छे से समझने के लिए हमको और भी जाना पड़ेगा। तब तो ये जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, तो उसमें से जब आप जाओगे तब आपको योग का जो क्लियरिटी है तो उसको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है सौरभ जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब करेंगे प्राणायाम, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए पहले आपको सीधा बैठना पड़ेगा। गर्दन पे एकदम सीधा करिए, कीप योर स्पाइन इरेक्ट एंड देन हाथ का जो जेस्चर है, हैंड जेस्चर जो है वो आपका होगा विष्णु मुद्रा।
तो विष्णु मुद्रा कैसे करना है, ये मेरा 5 फिंगर है। जो फर्स्ट 2 फिंगर है, जो फर्स्ट 2 फिंगर है, इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। फर्स्ट 2 फिंगर को ऐसे मोड़ देते हैं और जो लास्ट का जो 2 फिंगर है वो ऐसे रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और फर्स्ट 2 फिंगर जो थंब के पास इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों हम लोग मोड़ देते हैं और इसको ऐसे रखते हैं और लास्ट 2 फिंगर स्ट्रेट रहेगा। तो ये हो गया आपका विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा, तो विष्णु मुद्रा पे हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आपका जो बायां हाथ है उसको आपके थाइस के ऊपर रखिए और कीप योर स्पाइन इरेक्ट एंड देन with your right thumb close your right nostril and inhale through your left nostril. कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे inhale through your left nostril and then close your left nostril and exhale through your right side. Once again, inhale through your right side. Deep inhale to right side. And then close your right nostril and exhale through your left side. And then open your eyes. यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप inhale कर रहे हो तो क्या करना है, आप स्टार्ट कर रहे हो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल से। तो जब आप ब्रीथ लेते हो तब आप डीपली लेना पड़ेगा। डीपली मतलब है नहीं कि आप बहुत जोर से ले रहे हो, ऐसे ऐसा नहीं है। बहुत धीरे धीरे गहरा सांस लेना है, इसको बोलते हैं डीप ब्रीथिंग। और ये एकदम एब्डोमेन से लेना है, धीरे धीरे एब्डोमेन से लेना है। और सपोज मैं लेता हूँ, इनहेल कर रहा हूँ लेफ्ट नॉस्ट्रल से 4 काउंट तक, जैसे कि इनहेल 1 2 3 4 सेकेंड में ले रहा हूँ लेफ्ट नॉस्ट्रल से। जब मैं छोड़ता हूँ राइट नॉस्ट्रल से तो जो टाइम है मेरा वो दीर्घ होगा, ज्यादा होगा। तो 4 से ज्यादा होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो चलिए, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब and inhale through your left nostril. 1 2 3 4. Close your left nostril and then exhale your breath from right side. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. Exhale to right side. Close your right nostril and exhale left. प्राणायाम जब हम करते हैं तो आंखें बंद रहेगा। ऑलवेज जब हम लोग प्राणायाम करेंगे आंखें बंद रहेगा। और रूपाली नाथ, एक सेकेंड, रूपाली नाथ प्लीज म्यूट कीजिए आपको। रूपाली नाथ, आपके लिए डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। हम कर दे रहे हैं आपको म्यूट। ओके, हाँ, तो प्राणायाम के लिए धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना है और जितना सेकेंड और टाइम हम लेंगे उतना उससे भी ज्यादा हमको छोड़ना पड़ेगा। सपोज मैं ले रहा हूँ 4 सेकेंड इनहेलेशन, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा उसको 6 सेकेंड या 8 सेकेंड तक। रेशियो जो है वो ऐसा रहेगा। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ये सिर्फ फ्लैश और जो बोन और ब्लड से नहीं बना है। इसमें बहुत सारी इनर ऑर्गन्स है और सूक्ष्म बहुत सारी हमारा बॉडी है, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, बहुत सारी चीजें हैं, फर्टल बॉडी है। तो we have 72,000 nadis in our body, energy channel. आप प्यूरिफाई कर देते हो और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम ठीक हो जाता है। जो भी आपका नर्वस ब्रेकडाउन है वो ठीक होता है और
आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, थ्रू दिस प्राणायाम यू कैन हील योरसेल्फ। और आपका जो लंग कैपेसिटी है, बहुत सारे लोग जो जिनका अस्थमा है और ब्रीदिंग का बहुत सारा जो उनका प्रॉब्लम रहता है, तो थ्रू दिस प्राणायाम यू कैन क्योर योरसेल्फ। सो आप ये बहुत सारे लाभ इसमें है। सो इसको करने के लिए आपको योग करने के लिए सबसे आपको खाली पेट सुबह सबसे बेस्ट टाइम है। तो उस टाइम आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो प्राणायाम को। और इसको आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप कर सकते हो। और इसको आप रिपीट कर, आप 1 मिनट आपने प्रैक्टिस किया, फिर थोड़ा आप विश्राम किया आपने, और फिर 1 मिनट प्रैक्टिस किया, फिर विश्राम किया, फिर कुछ सेकंड, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू आर रेडी। So now we are going to do the রাত্রেবেলা বেকার হরি ঘাটার মতো ঘুরিয়ে 3 বার बैठ जाइए। ঘুড়ি কাটা হচ্ছে हम लोग बैठ এই দিকে both knees to ঘুড়ি কাটা ঘুরে কোন দিকে? এই দিকে, বাঁ দিকে ঘুরে। মুখটা ছোড়া না, আর একটা কথা বলতে দেয় না। যতক্ষণ জেগে থাকবে জ্বলিয়ে দিচ্ছে একবারে। এক জায়গায় ফোন বসে না কিছুতে। সময় লাগে কেন? কিছু বলতেই না, কিছু বলার কথা বলে না। ওইটাকে আবার 4 পিস করে ওই দাও ওইখানে দিয়ে আসো। সমরেশ মিউট করে দাও। হ্যাঁ, ওটা জেগে আছে। শুভেন্দু কোথায় গেল গো? দিচ্ছি, সাউন্ড সবাইকে অফ করা মিউট করে আছে তো? দিচ্ছি। শীর্ষেন্দু মুখার্জি মিউট করুন। লালটা হবে না। একটু হোল্ড করুন, উনি ওনার লেফট হয়ে গেছে, এত মুশকিল হচ্ছে, এত কথা হচ্ছে আজকে, কোনো কারণে প্রবলেম হয়েছে। জাস্ট এ মিনিট।
আপনি একটু আনমিউট করে নিন, একটু আনমিউট করে নিন, আপনার মিউট হয়ে আছে। तो मेरे बहन को एकदम सीधा करके फिर हम लोग करेंगे 3 स्ट्रेच ब्रीदिंग। So first of all, we breathe through our abdomen. So keep your right palm to your abdomen, over to your belly button, and inhale and expand your belly out like a balloon. Inhale. Or exhale, contract your belly towards the spine. Once again, जब हम लोग inhale करते हैं, जब हम लोग inhale करेंगे, Sir, एक second, sir. जब Sir, हम लोग 1 minute. Actually, Okay. we are getting many Okay. problem. Now I am Sure. giving a warning to everybody. If I find that anybody's mic is on, I will remove you from the call, from this meeting. So please mind that. आप लोग mute करके रखिए, जैसे जयदीप পুরো কায়স্থ, your mic is on. আপনারা যারা আছেন মাইকটা অফ করে রাখুন, ক্লাসের প্রচুর আগে ডিস্টার্ব হচ্ছে, ওই জন্য কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে না। তো সবাইকে বলবো মাইক গুলো অফ করে রাখুন, যার মাইক অন হবে বা কথা বলবেন আমি কিন্তু বাধ্য হব এখান থেকে রিমুভ করে দিতে। আপনাকে তখন ফেসবুকে গিয়ে দেখতে হবে, ফেসবুকেও লাইভ চলছে। ওকে স্যার, প্লিজ ক্যারি অন। तो हम लोग ब्रीथ लेते हैं कि क्लास में बहुत बार बोला जाता है कि श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, मगर हम लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ नाक से ही श्वास लेते हैं, इनहेल एक्सहेल सिर्फ नाक से ही करते हैं। मगर अब हम जानेंगे कि 3 स्टेज ब्रीथिंग क्या होता है। कि पहले तो ये होता है कि हम लोग ब्रीथ करते हैं एब्डोमेन से। तो और एक चीज जो है, जब हम लोग इनहेल करते हैं थ्रू एब्डोमेन, आप लोग अपना जो राइट पाम है आपका बेली बटन के ऊपर रखिए, ओवर टू योर एब्डोमेन, सॉरी टू योर बेली, एंड देन इनहेल कीजिए और बेली कम्स आउट लाइक ए बैलून, एंड देन एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर बेली टुवर्ड्स योर स्पाइन, अंदर की तरफ जाएगा एक्सहेल करते हुए। और एक बार इनहेल कीजिए, बेली कम्स आउट, बाहर की तरफ आएगा पेट, और एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये हो गया वन टाइप ऑफ ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो देन वी विल डू सेकेंड, अपना हाथ जो है छाती के नीचे, जो लोअर रिब ब्रीदिंग। तो इनहेल कीजिए और एक्सपैंड कीजिए रिब, and exhale, contract, inhale और फिर exhale। तो फास्ट हो गया वन टाइप ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारा पेट से जो फिर हो गया आपका लोअर रिब पे, और लास्ट वन है अपर चेस्ट पे। कीप योर palms over to your chest, then take a deep inhale and then exhale. Inhale deeply, rise your chest, and then slowly exhale. तो ये हो गया आपका 3 स्ट्रेच ब्रीदिंग। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम लोग ये जो प्रोसेस है इसमें जाते हैं। तो आप नहीं जानते हैं तो उनका जो आपको जानना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। तो ये और टेक्निक है। तो हम लोग ये साइंस है 3 स्टेज ब्रीदिंग का। और फिर आप लोग रिलैक्स कीजिए, कीप योर लेग फॉरवर्ड, और सुखासन में बैठे, सुखासन, और एक बार लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए, और एक बार लंबा गहरा श्वास और नाउ वी विल डू, हम लोग जानेंगे कि बंधासन क्या होता है। प्राणायाम में हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मगर जो लाभ मिलना चाहिए
वो बंधास में मिलते हैं, लॉक में मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो एंशियंट योगी जो है वो क्या होता है कि पद्मासन में बैठे रहता है, उसका पेट अंदर की तरफ होता है, उसका पेट, तो वो टाइप ऑफ लॉक बंधा। तो बंधा करने के लिए खाली पेट आवश्यक है और मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, मॉर्निंग बेस्ट टाइम है। और कौन नहीं कर सकता है बंधा? जिनका एस्थमा है, जिनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बिगिनर्स है, जो नया प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बंधास नहीं करें। जो बहुत दिनों से प्राणायाम की अभ्यास आप कर रहे हो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग इनहेल करते हैं, उसको बोलते हैं पूरक। इनहेल संस्कृत में बोलते हैं पूरक, और जब हम एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं रेचक। और जब हम लोग श्वास लेते हैं और उसको लॉक करके रखते हैं, छोड़ते नहीं है, उसको बोलते हैं कुंभक। तो पूरक हो गया आपका इनहेल, रेचक हो गया आपका एक्सहेल, और आपको ब्रीथ को आप अपने अंदर या बाहर आप लॉक करके रख रहे हो, उसको बोलते हैं कुंभक। और कुंभक का भी 2 टाइप्स है, एक है अंतर कुंभक और एक है बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक क्या होता है कि मैंने इनहेल किया फ्रॉम योर एब्डोमेन, से इनहेल किया, फिर उसको मैंने अंदर उसको रखा, बाहर नहीं छोड़ा, इसको बोलते हैं अंतर कुंभक। इनहेल और उसको बाहर नहीं छोड़ा, लॉक करके रखा। और हम लोग जलंधर बंद कर सकते हैं, चिन को चेस्ट ऐसे इनहेल किया, अपने अंदर श्वास को बंद करके रखा, और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। तो श्वास को अंदर रखना, इसको बोलते हैं अंतर कुंभक। फिर हम लोग सीखेंगे बाह्य कुंभक। हमने इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया, फिर लॉक किया, ये सबसे कठिन लॉक है। हम अभी क्या कर रहे हैं, कोई इनहेलेशन नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका बाह्य कुंभक। इनहेल, एक्सहेल, और अपने श्वास को बंद कर दिया थ्रू जलंधर बंद, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल कर दिया। तो लॉक में क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो मन है वो चंचल रहता है, इधर उधर घूमता है। तो योगिक प्रैक्टिस में ऐसा कहा जाता है स्क्रिप्चर में, जो प्राचीन योगीज है, मन को काबू करना बहुत ही कठिन होता है। तो मन को हम कैसे काबू करें? तो ये जो बंधन है, लॉक है, इस लॉक के थ्रू हम लोग काबू कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। तो इसका भी काफी सारे प्रकार है। तो जैसे कि एब्डोमिनल लॉक है, एनस लॉक है, और लॉक है, बहुत सारे लॉक है। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे जलंधर पर। तो आप लोग चलिए इनहेल एंड एक्सहेल ना करके चिन को चेस्ट से लॉक करके रखें, और कुछ सेकंड तक हम यहाँ पर रहना है। 1 2 3 4 5 6, और फिर एक्सहेल। और एक बार take a deep inhale and then without exhale lock your chin to chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 and then exhale. ये हो गया आपका जलंधर बंद, यानी कि थ्रोट लॉक। और अब हम सीखेंगे कि उद्यान बंद, जो होता है कि हम लोगों का जो है
पेट को अंदर की तरफ लेना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इनहेल and contract your belly inside and lock your chin to chest और उसको लॉक कर दिया। पेट को अंदर की तरफ रखना, कोई एक्सेलेशन हम नहीं कर रहे हैं, इसको लॉक करके रख रहे हैं। वैसे ही कुछ सेकंड तक हम लोग रहेंगे। 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल। जो बिगिनर से उसके लिए बैक के थोड़ा कठिन हो सकता है, तो आप लोग खड़े हो जाइए। खड़े होके क्या करना है, आपका जो नीज है उसको थोड़ा बेंड करना है और आपका जो पाम है उसको नीज के ऊपर रखना है और आपका जो अपर बॉडी झुकाना है, इनहेल करना है और आपका जो पेट है अंदर की तरफ स्पाइन की तरफ ले जाना है और फिर वहां पे आपको विदाउट एक्सेल आपको रहना है। 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेल। खड़े हो जाइए और एक बार आपका नीज बेंड कीजिए। जब हम लोग नीज बेंड करते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। कीप योर पाम ऑन योर नीज एंड देन इनहेल योर अपर बॉडी डाउन, इनहेल एंड देन कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन towards your spine। कुछ सेकंड तक लॉक विदाउट एक्सेल हम लोग रहेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1 and then completely exhale। now sit up। तो ये हो गया आपका उद्यान बंद। जलंधर बंद हो गया, उद्यान बंद हो गया और जो लास्ट बंद है वो है मूल बंद। मूल बंद जो है, जो एनस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। जो एनस है, जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एनस, तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनहेल करना है और उसको एनस के पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है और यहाँ पर भी विदाउट एक्सेल श्वास छोड़े बिना आपको कुछ सेकंड तक उसको श्वास को अंदर भी रख सकते हैं, बाहर तो बहुत कठिन है, आप अंदर रखिए श्वास को। 1 2 3 4 5 6 और धीरे धीरे एक्सेल। थोड़ा विश्राम करने के बाद और एक बार इनहेल एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एनस and then 6 5 4 3 2 1 and then exhale, relax। तो ये हो गया है आपका त्रिबंधन, जो ब्रीथ कंट्रोल। तो जिनका अस्थमा है, जिनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट है, जिसका फीवर है और जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उनके लिए एक प्रिकॉशन है, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जिनका सर्जरी हुआ है वो भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो भी बंधास नहीं प्रैक्टिस करेंगे और जो योग में जो नया है वो भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे। जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ब्रीथ को अच्छे से ले पाते हैं, फील कर पाते हैं, उनके लिए है। तो 3 जो बंधा है इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं महाबंध। तो हम लोग एक बार तीनों करते हैं एक साथ। Keep your palms up on your thighs. Keep your spine erect. Inhale through your abdomen. First lock is Jalandhar Bandh, throat lock. Then abdomen lock. Then anus lock. Close your eyes. Jalandhar Bandh, Mool, Udyan Bandh, Mool Bandh. तीनों बंद एक साथ। कुछ सेकंड तक रहने के बाद एक्सेल करके विश्राम। त्रिबंध जिसमें हम लोग लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग
हलासन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग थ्रोट लॉक करते हैं। जब पैर जाता है फिर क्या करते हैं हम लोग, जो चिन्ह है चेस्ट को लॉक करते हैं। या फिर सर्वांगासना, जब शोल्डर स्टैंड पोज, जब हम लोग शोल्डर स्टैंड करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, तो धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाते हैं, फिर अपने हाथों, अपने एल्बोज नीचे रहता है, और आपका जो लोअर जो बैक है, लोअर बैक है, उसको हैंड सपोर्ट, पाम से सपोर्ट देते हैं। फिर पैर जितना सीधा हो सके हम लोग ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको जाने के बाद हम लोग लॉक करते हैं, अपना जो चिन्ह है से लॉक करते हैं, पैर ऊपर रहता है। तो लॉक का इस्तेमाल बहुत से जो त्रिबंधस है, इनका इस्तेमाल आसना में भी है। तो अब हम जाते हैं, हमने 3 स्टेज ब्रीथिंग दिखा दिया, नाड़ी शोधन वन ऑफ द इफेक्टिव प्राणायाम दिखाया, फिर हमने बंधस दिखाया, फिर हम लोग जाते हैं आसना की तरफ, पोस्चर। एज पर पतंजलि स्थिरम सुखम आसना, जो कंफर्टेबली हम लोग कर सकते हैं विदाउट सो मच इफर्ट, उसको महर्षि पतंजलि ने बोला है आसन। मगर ये है कि आसना जब हम करते हैं तो जब बिगिनर्स है, जब हम पहले शुरुआत करते हैं तो थोड़ा इफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी लोग देखा जाता है जो ठीक से बैठ भी नहीं पाते। जैसे मैंने पद्मासन में बैठा है, वो लोग ऐसे होता है, उनका जो नीज है, जो थाइस है, वो नीचे नहीं जाता है उतना, उनका लेग्स जो है, उनका जो मसल है, उनका हिप है, इतना टाइट होता है। तो उनको इफोर्ट करना पड़ता है। या कुछ आसना है जो जिनपे बिगिनिंग पे आपको इफोर्ट डालना पड़ता है, मगर ये नेचुरल है। तो आसना जब हम करेंगे उसके पहले हमको चालना क्रिया करना पड़ेगा। चालना क्रिया क्या होता है कि रोटेशन, जैसे कि हैंड रोटेशन, हमने हैंड रोटेशन और क्लॉकवाइज करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। और जब हम चालना क्रिया करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, ब्रीथ पे भी फोकस करना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। आपका जो मूवमेंट है, आपका हैंड रोटेट हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। और आप ब्रीथ ले रहे हो, आप इनहेल ले रहे हो, आपका हाथ घूम रहा है, एक्सहेल, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो और हाथ घूम रहा है। ये नहीं कि आपने श्वास को अपने बंद करके रखा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू ब्रीथ लेते जाना है, आपका फोकस ब्रीथ को पूरा फील करना होगा, मूवमेंट को भी फील करना होगा, तब क्रिया होगा। तो आसना करने के पहले चालना क्रिया में सबसे मुख्य है वो है जो रोटेशन, हैंड रोटेशन, लेग रोटेशन, ट्रंक रोटेशन और आपका नेक रोटेशन, बहुत से रोटेशन है वो रोटेशन। और है जो आपका ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पद्मासन में बैठा है, लोटस पोज में बैठा है, स्पाइन रेट करके हम करेंगे ट्विस्ट वार्म अप करने के लिए। तो इनहेल करेंगे, दोनों साइड, कीप योर हैंड शोल्डर लेवल। एक्सहेल करेंगे और अपने जो ट्रंक से अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे टू द लेफ्ट साइड। अपने जो राइट पाम है उसको राइट नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को आप नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, और हम पीछे की तरफ देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि स्पाइनल ट्विस्ट हो रहा है, स्पाइनल ट्विस्ट। और फिर इनहेल करेंगे करके सामने आएंगे, फिर एक्सहेल करके राइट साइड की तरफ। यहाँ पर कुछ सेकेंड हम लोग फिर इनहेल करते हुए सामने की तरफ, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। यहाँ पर कुछ सेकेंड रहना है, फिर कम टू द मिडल, इनहेल, फिर एक्सहेल,
to the right side. So breathing, movement together. चलना क्रिया में करना है, मूवमेंट करना है, और ब्रीदिंग और मूवमेंट दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। तो चलना क्रिया में जो योगिक वार्म अप है, पहले जो हो गया रोटेशन, फिर हो गया ट्विस्ट, फिर हम लोग करेंगे आसना। आसना में जो सहज आसना है वो पहले करेंगे, और वार्म अप आप सन सेलिब्रेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपने सूर्य नमस्कार किया, आपने चालना क्रिया किया, फिर सन सेलिब्रेशन किया, सूर्य नमस्कार किया, 5 सेट और 6 सेट, एंड देन आप इसमें जा सकते हो। और आसना में और भी एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो आसना आप करने जा रहे हो उसके पहले की अवस्था कैसे होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, वो है पश्चिमोत्तानासन। इंग्लिश नेम है सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। So I am showing you, observe me carefully. So I am keeping my legs forward and extend, and I am touching my heel to the floor and flex your feet. जो टोर है मेरे तरफ रहेगा, लेग स्ट्रेच रहेगा, आपका लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, नेक पूरा अलाइन रहेगा, सीधा रहेगा। इस तरफ मैं दिखाता हूँ। और आपका जो पाम है वो आपका कमर के पास रहेगा। और पाम कैसे रखना है, आपका जो पाम, आपका जो रिस्ट है, रिस्ट और आपका जो शोल्डर है ये पूरा अलाइन रहेगा। दोनों हाथ दोनों साइड कमर के पास, जमीन पे मेरुदंड सीधा सामने देखेंगे, दोनों पैर सीधा, और फ्लेक्स योर फीट, टच योर टोज, सॉरी फ्लेक्स योर फीट, ऐसे रखना है। तो ये हो गया आपका दंडासन। हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन, मगर पश्चिमोत्तानासन करने से पहले हमको बैठना है दंडासन। फिर दंडासन में हम लोग जाएंगे पश्चिमोत्तानासन की तरफ। इनहेल करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जितना हो सके ऊपर उठाना है, और एक्सहेल करते हुए आपका जो स्पाइन है उसको एक्सटेंड करना है। आपका टारगेट आपका नी को फोरहेड से टच करना नहीं है, आपका टारगेट है सामने जाना, चेस्ट को सामने ले जाना और भी सामने जाना। ऐसे इनहेल किया और एक्सहेल किया ऐसे। फिर आपका जो हाइट पे टच करेगा, और आपका जो फोरहेड है और आपका जो फोरहेड है वो आपका सिन बोन पे टच करेगा, और आपका जो एल्बोज है वो जमीन पे टच करेगा, और दोनों पाम से आपका जो कोर बीट जो है उसको पावरफुल तरीके से ग्रैब करना है। फिर आपने कर लिया पश्चिमोत्तानासन। यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड रहना है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और भी ज्यादा। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को उठाना है, इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे ले आइए। तो ये हो गया है आपका पश्चिमोत्तानासन। तो ब्रीदिंग आपको देखना है कि कैसे आप ब्रीथ ले रहे हो। इनहेल कर रहे हो दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ, गो डाउन ऑल द वे। फिर इस आसन के बाद कौन सा आसन करना है? इस आसन के बाद हम लोग कर सकते हैं वैसे ही दंडासन में बैठना है। फिर आपका जो पाम्स है, कीप योर पाम्स बैक एंड योर रिस्ट एंड शोल्डर शुड बी अलाइंड। Your wrists and shoulders should be aligned. Wrist is सामने की तरफ, और इनहेल करते हुए lift your butt, lift your, and then from it to your should be in a straight line, and that's your
कुछ सेकेंड रहना है, आपका ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगा और फिर एक्सेल पे go down all the way to hip to the floor. तो ये है। और भी आसना है, जैसे कि आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन में भी हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, इनहेल करके लेग का वृक्ष को पकड़ते हैं और एक बार इनहेल करते हुए राइट लेग को फोल्ड करके जो फुट है, राइट फुट है, उसको लेफ्ट चेस्ट के सामने ऐसे ले आते हैं और जो लेफ्ट एल्बो और इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट वृक्ष को पकड़ना है ऐसे। आकर्ण धनुरासन आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक आर्चर की तरह हो गया, एक धनुर्धारी की तरह हो गया ऐसे। फिर एक्सेल करते हुए छोड़ देना है। तो ये हमने किया बायां हाथ और डान पैर से। इसका एंटी पोस्चर किया है, दूसरा हाथ दूसरा लेग से। इनहेल राइट हैंड अप, एक्सेल ग्रैब योर लेफ्ट टो विद द राइट पाम। फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऐसे राइट चेस्ट के सामने रखना है। फिर इनहेल करके लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाम से राइट को पकड़ना है और ऐसे रखना। तो दोनों साइड कंप्लीट हो गया। फिर मैं खड़े होके एक आसन दिखा रहा हूँ, वो आसन का नाम है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन पीछे पार्ट, दोनों पैर एकदम कंफर्टेबली स्टैंड कंफर्टेबली as per your shoulder level, and then keep your inhale, take up your both hands up, and then exhale, lift your chest, and then arch back, all the way back bend, all the way back bend. और यहाँ पे हम कुछ सेकेंड रहना है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड, और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे सीधा, और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे सीधा, और एक्सेल करते हुए हैंड्स डाउन। तो हमने क्या किया, जो स्पाइन है उसको पीछे की तरफ ले गया। तो यहाँ पर हम छोड़ दे तो नहीं, इसके बाद कौन सा आसन करना है वो आपको जानना पड़ेगा। हमने किया ऊर्ध्व हस्तासन, जो ध्यान सर्वेक्षण सूर्य नमस्कार में जो 2 आता है, फर्स्ट आता है प्रणवासन, देन ऊर्ध्व हस्तासन। तो उसके बाद आपको जो आसन करना है वो है उत्तनासन और पादहस्तासन। तो उसके लिए स्टैंड कंफर्टेबल, बोथ योर फीट टुगेदर, इनहेल, रीच योर बोथ हैंड्स अप टुवर्ड्स द स्काई एंड एक्सहेल, फोल्ड फॉरवर्ड। एक्सहेल करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड करना है। और इस आसन में भी सेम है कि पश्चिमासनासन की तरह आपकी टारगेट ये नहीं है कि आपका जो फोरहेड है नी पे टच करना, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो स्पाइन है उसको ज्यादातर उसको एक्सटेंड किया जाए, आपका चेस्ट को और भी सामने की तरफ ले जाए। फिर आप मैट पे भी अपना पाम रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ग्रैब योर एंकल जॉइंट एंड योर एल्बोज नियर टू योर लेग एंड एक्सहेल करते हुए चेस्ट टू थाई एंड फोरहेड टू द सिन बोन। ये हो गया आपका पादहस्तासन या उत्तनासन। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए टेक अप योर हैंड्स अप, एक्सहेल ड्रॉप योर हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। सो हमने ऊर्ध्व हस्तासन किया, उसके बाद हमने किया पादहस्तासन या उत्तनासन। और ऐसा भी देखा जाता है कि योग का बहुत सारे घरानास है, बहुत से घरानास है। शिवा स्टाइल, मैसूर अष्टांग स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल होता है। तो उनमें डिफरेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है कि जैसे कुछ घराना है जो बोलते हैं पादहस्तासन,
एक पोस्चर में दिखाता हूँ जो मैंने किया पादहस्तासन। तो इसको कुछ घराना बोलते हैं पादहस्तासन, कुछ घराना बोलते हैं हस्तपादासन, कुछ घराना इसको इस दोनों में से कोई भी नहीं बोलता है, वो बोलते हैं उत्तानासन। तो आपको डीपली जाना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे घरानाज है, उनका नाम का थोड़ा ये नहीं बोलना चाहिए कि आप एक घराने के साथ आप जुड़े हो तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये तो ये नहीं है मगर ये है। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा। बहुत से प्लेस है, आश्रम है, वहां जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज है, आप कोर्स कर लिया, आपने योगा टीचर बन गया। योग उतना आसान नहीं है, योग एक समंदर है जिसमें कोई अंत नहीं है, इसका शुरू है मगर अंत नहीं है। सो नाउ द नेक्स्ट वन हो गया, और जो एडवांस पोस्चर है, एडवांस पोस्चर करने के लिए आपको एक और जो भी योगी प्रैक्टिस है आप एक ट्रेंड गुरु के पास सीखे, यूट्यूब से मत सीखे, बुक्स पढ़ के मत सीखे, एक गुरु के पास जाइए। क्योंकि आप बहुत से चीजें हैं, अलाइनमेंट है, एनाटॉमी है, उनका फिलोसफी है, तो पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, अगर आपको चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, बहुत से चीजें होता है। तो उसके लिए एक ट्रेंड क्वालिफाइड योगा गुरु, योगा टीचर के पास आपको जाना है, जिनके पास डिग्रीज है योग का और जिनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस है, उनके पास आप सीखें। और जो एडवांस पोस्चर है उनके लिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते जाइए। जैसे कि एडवांस पोस्चर में से आता है शीर्षासन, हेडस्टैंड। तो इसका जो हर लोग क्या बोलते हैं कि मुझे शीर्षासन नहीं होता है, फिर वो ट्राई करते हैं मगर वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो शीर्षासन को कैसे अचीव करना है उसका जो सूत्र है मैं आपको बोलता हूँ। और शीर्षासन जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो 1 मंथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। थोड़ा 1 साल या कुछ 6 मंथ प्रैक्टिस कर लिया योग का, वो शीर्षासन करने के लिए योग है। तो शीर्षासन करने के लिए आपको जो बेसिक चीजें हैं, आपका जो फाउंडेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शीर्षासन जब आप करते हो अपसाइड डाउन, आपका हेड नीचे रहता है, लेग्स ऊपर रहता है। तो उसमें अगर आपका हैंड्स, आपका आर्म्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कभी आप शीर्षासन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हाई प्लैंक, लो प्लैंक या पुशअप या 1 पुशअप ऐसे कुछ आपको प्रैक्टिस करना है कि जैसे आपका हैंड मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए। कि आप जब शीर्षासन लगाते हो तो क्या होता है, हैंड पे प्रेशर आता है कि नहीं आता है। तो हैंड अगर आपका कमजोर है तो शीर्षासन आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। तो नंबर 1 आपके हैंड का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर हैंड का जो मोबिलिटी है, शोल्डर मोबिलिटी, जैसे कि शोल्डर रोटेशन, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और बहुत से शोल्डर का मूवमेंट है, जैसे कि हिंदू पुशअप है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि शोल्डर का जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और फिर हम लोग आते हैं, हैंड हो गया शीर्षासन करने के लिए। फिर जो आता है, अगर आपका कोर, अगर आपका पेट का जो मांसपेशियां है वो कमजोर है तो आप शीर्षासन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जब पैर ऊपर आपका जाएगा आप गिर जाओगे। पैर जो कोर है वो बहुत ही वीक है, तो उसके लिए
पश्चिमोत्तानासन, ऐसे बहुत से जो पोस्चर है कम हो जाएगा, तब आप शीर्षासन बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो आपका हैंड का पावर और आपका शोल्डर मोबिलिटी, रिस्ट मोबिलिटी, एंड द सेकेंड वन आपका कोर, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और थर्ड वन आपको क्या करना है, जब आप शीर्षासन कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग, आपका जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। कैसे अपने अंदर श्वास आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, पूरा आपका जो ऑब्जर्व है, कंसंट्रेशन नहीं है, ऑब्जर्व है, कोई कंसंट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ एज ए विटनेस ऑब्जर्व करना है। और उसका जो ब्रीदिंग है वो लंबा होगा, उज्जाई ब्रेथ होगा। जब आप शीर्षासन में होंगे तो आपका जो ब्रीदिंग होगा वो एकदम डीप उज्जाई ब्रेथ होगा। धीरे धीरे हम इनहेल करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। और ये चीजें है आपका हैंड, आपका कोर और आपका ब्रीदिंग, ये तीनों चीजों पे आप जब काम करते हो तब आपका शीर्षासन हो जाता है। तो ये भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। सो कुछ टिप्स मैंने आपको बताया। सो जो बॉडी हम लोगों का है, मैंने पहले ही बताया है कि साइंस जो बोलते हैं कि वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बातें बोलता है, मगर योग जो है वो डिवाइन साइंस है। मैं बोलता हूँ कि जो साइंटिस्ट का जो साइंस है वो है मेटेरियल साइंस। इसमें कैसे हम लोग सुख पा सकते हैं, कैसे हम लोग इस पृथ्वी पे बहुत से गाड़ी, बंगला, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बहुत से सुख पा सकते हैं ऐसे, मगर अंदर का सुख ये साइंस नहीं दे सकता है, वो आपको योग दे सकता है। और योग क्या है, वो डिवाइन साइंस है। योग मेटेरियल साइंस जिनको नहीं जान पाता है, जहां पर नहीं पहुंच पाता है, यहाँ पर योग है। कि हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन पे क्या है, पीछे बैक पे हमारे चक्रास है, 7 चक्रास है, मूलाधार से सहस्रार तक 7 चक्रास है। मगर साइंस, एज पर साइंस देखा गया है कि जो पोस्टमार्टम है वहां पर देखा गया है बॉडी को कि वहां पर कोई चक्रास के साइन नहीं है। एक्सरे करके या कुछ भी फोटोग्राफी करके नहीं देखा गया है, मगर चक्रास है, एनर्जी चैनल है। तो मैं समरेश जी को बोलना चाहूंगा कि जो 7 चक्रास जो है, मैंने आपको एक फोटो भेजा था, सबको एक बार आप दिखाए प्लीज। ओके। Which one, sir? सर ये ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैंने आपको भेजा नहीं है, सॉरी। तो जो मेरुदंड है उसमें इनविजिबल, तो दिखता नहीं है, हाथों चक्रास, हाथों चक्रास। तो सबसे नीचे जो चक्रा है वो है आपका मूलाधार चक्रा, फिर आपका है स्वादिष्ठान चक्र, फिर आपका है मणिपुर चक्र, फिर है अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और एकदम ऊपर है सहस्त्र चक्र। तो योग के माध्यम से जो एनर्जी चैनल है, जो 7 चक्रास है, उनका हम लोग जागृत कर पाते हैं। तो पहले मैंने बताया कि बॉडी पे 72,000 नाड़ीज है। तो 72,000 जो नाड़ीज है वो मीट होते हैं स्पाइन पे,
स्पाइन पे जो सातों चक्रास होते हैं, सभी जो नाड़ीज है यहाँ पे आके वो जोड़ते हैं। तो जब आपका चक्रास जागृत हो जाता है, तब आप क्या होता है कि बॉडी में जो आपका जो सूक्ष्म एनर्जी चैनल है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। और एनर्जी चैनल जब आपका एक्टिवेट हो जाता है, तब आप सब जगह पे आप सक्सेस पा सकते हो। आपके मन में सुख है, आपकी शरीर एकदम तंदुरुस्त है, और आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, एकदम डिजीज फ्री है। सो चक्रास और नाड़ीज हमारे बॉडी में है, सिर्फ हम रक्त मांस और फ्लेश से बॉडी नहीं है। तो लेट्स एवरीवन, आप लोग बैठ जाइए गर्दन को सीधे करके, और हम लोग थोड़ा आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपने श्वास पे ध्यान देते हैं। कंटिन्यू श्वास लेते जाइए और छोड़ते जाइए। कंटिन्यू ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out. And relax. So, मन शांत करने के लिए, और जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो नर्वस प्रॉब्लम है, नर्वस ब्रेकडाउन है, और जो साइकोसोमैटिक डिजीज है, और उनके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम मैं आपको बोलता हूँ, वो है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या है कि आप बहुत टेंस हो, आपका मन एकदम अशांत है, तो कैसे आपका मन को शांत की जाए आपका, तो उसके लिए है आपका है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको करना है षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा करने के लिए जो फेस पे सातों द्वार है उसको लॉक करना है। उसको जैसे कि फर्स्ट तर्जनी चिन्ह पे दिया, फिर दोनों फिंगर आपका नाक के नीचे दिया, फिर दोनों फिंगर नाक के ऊपर, फिर दोनों आंखों के ऊपर ऐसे, और फिर जो थंब से वो कानों पे। सातों द्वार जो है कर्ण नासिका जिह्वा तक जो है सबको हम लोग लॉक करते हैं। सातों द्वार को हम लोग लॉक कर रहे हैं। In the beginning I am showing you, then you will do. फिर आंखें बंद, सातों द्वार को लॉक कर लिया षण्मुखी मुद्रा से। फिर इनहेल करना है डीपली, और एक्सेल करना है हमिंग साउंड के साथ, दोनों लिप्स टुगेदर। और थोड़ा देर जो वाइब्रेशन हमने क्रिएट किया उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। थोड़ी सेकंड बाद इनहेल and then exhale with humming sound, both your lips together. Yes. तो चलिए एक बार कोशिश करिए, आपका जो लास्ट जो फिंगर है वो चिन्ह वो आपका होगा, फिर ऐसे नोज के ऊपर, फिर आंखों के ऊपर, चारों फिंगर सामने फेस पे, थंब आपका ईयर पैसेज पे दे दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आपका ब्रीथ के ऊपर एकदम फोकस कीजिए, और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड फुल्ली एक्सेल, और थोड़ी रेस्ट, थोड़ा जो हमने साउंड क्रिएट किया उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। वंस अगेन इनहेल,
one of the most effective pranayam to control your mind. यमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार मतलब क्या है कि मन जो अशांत है, जो सेंस ऑर्गन है, जो इंद्रिया है वो बहिर्मुखी है, उसको कैसे अंदरमुखी किया जाए, मन को कैसे सेंटर किया जाए, मन को कैसे प्रेजेंट मोमेंट पे किया जाए। योग में क्या बोला जाता है कि पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट पे फोकस करो। तो ये जो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, इसमें कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हो, आपका पास्ट फ्यूचर जो है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है। ये एक वन टाइप ऑफ प्रत्याहारा प्रैक्टिस होता है। तो ये हो गया। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि योग सभी कर सकते हैं। योग सिर्फ आसना नहीं है, बहुत कुछ है। आसना नहीं है, यमा नियमा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बहुत कुछ है। और आसना भी बहुत है। 84 lakhs asana, we have 84 lakhs asana. In between 84 lakhs, 84 is the best. 84 से क्या 84 lakhs से क्या है, 84 आसना बेस्ट है। 84 से क्या है कि 4 आसना सबसे बेस्ट है। 4 आसना से क्या है, 1 आसना बेस्ट है। सो ऐसे है। और सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है योग प्रैक्टिस करने के लिए, खाली पेट। आप सुबह प्रैक्टिस कीजिए, और सुबह आपका टाइम नहीं होता है तो इवनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। और योग प्रैक्टिस करने के लिए आप लूज क्लॉथ पहनिए, जो आरामदायक भी हो, कॉटन का हो, आरामदायक हो, और बॉडी पे एकदम चिपका नहीं हो, टाइट नहीं हो, वैसा एकदम ढीला ऐसे क्लॉथ आप पहनिए। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो योग करते हैं, क्या होता है कि एनर्जी फ्लो होता है, एकदम हेड से टो तक हमारा एनर्जी फ्लो होता है। तो जब आप टाइट हम स्लैक्स पहनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कंपटीशन के लिए स्लैक्स ठीक है, मगर आप जब घर पे डेली प्रैक्टिस करते हो तब स्लैक्स मत पहनो, थोड़ा कंफर्टेबल कॉटन का क्लॉथ आप पहनो। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है, तो बेनिफिट बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलता है। और योग करने से पहले थोड़ा चैंटिंग कर लीजिए, थोड़ा ब्रीथ के ऊपर फोकस कर लीजिए। क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई म्यूजिक कंसर्ट पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो सिंगर है वो पहले नहीं आ जाता है। क्या होता है कि जो ड्रम बजाते हैं वो बहुत टाइम तक बजाते हैं, जो गिटार है वो चेक करते हैं, एक माहौल क्रिएट करता है। आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो सिंगर है वो आता है। तो योग प्रैक्टिस शुरू करने के पहले आपको थोड़ा आपका मन को प्रेजेंट मोमेंट पे करना है, बाहर का जो चिंता है उसको बाहर रख के प्रेजेंट मोमेंट पे रखना है, ब्रीथ पे फोकस करना है, और नाद का प्रैक्टिस करना है। नाद योगा, चैंटिंग, ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, व्हाटएवर, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गुरु प्रणाम हो गया, पतंजलि जो हमने आज किया वो हो गया। तो उसको प्रैक्टिस करना है। उसको प्रैक्टिस का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है कि मन जो है वो कनेक्ट हो जाता है बॉडी के साथ। और योग में मन जो बॉडी है, माइंड है, दोनों का संयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए चैंटिंग इन द बिगिनिंग वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। फिर चैंटिंग कर लिया, फिर हम वार्म अप कर लिया, फिर आप आसना प्राणायाम क्रिया बंधा मुद्रा वो आपने कर लिया, फिर आप क्या करें, छोड़ देंगे? नहीं, उसके बाद आपको करना है रिलैक्सेशन, योग नहीं, और पूरा बॉडी को ढीला छोड़ के आपको कुछ सूक्ष्म
रहना है योग निद्रा पे। तो बिगिनिंग एक कंप्लीट योग प्रैक्टिस का पैकेज में, और योग में आपको कॉन्टिन्यूअस सीखना पड़ेगा। इसका कोई अंत नहीं है, इसका शुरुआत है। और स्क्रिप्चर आपको रीड करना है। योग कहाँ से उत्पत्ति होता है? वेदा से। वेद आप पढ़ सकते हो, बेस्ट है। वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद। उपनिषद, भगवत गीता, जो चारों जो 18 चैप्टर से 18 योग है, उसमें से 4 योग जो सबसे बेस्ट है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा एंड राज योगा, जो स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है। 4 योगा के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्पणी दिया है। और बेलूर मठ का 4 बुक है उनका, कर्म, भक्ति, राजा, ज्ञान। ये 4 बुक आप कलेक्ट कर लीजिए, ये आपको जरूर पढ़ना होगा। जब आप योगिक प्रैक्टिशनर हो, आप योगा टीचर हो, स्टूडेंट हो, तो आपको इसका प्रैक्टिस तो इसको पढ़ना होगा। फिर हठ योगा प्रतिदीपिका, इसको आपको पढ़ना होगा। हिरण्य संहिता, इसको पढ़ना होगा। और भी काफी सारे, और पतंजलि योग सूत्र, और आसना प्राणायाम क्रिया, ऐसे बहुत से जो बुक्स है उसको आपको पढ़ना होगा। और जब आप आसना प्रैक्टिस करते हो, उनके लिए बोल रहा हूँ, आसना आप करते हो, क्या आप आसना का एनाटॉमी जानते हो? आपका जो आसना आप कर रहे हो उसका एनाटॉमी भी आपको जानना पड़ेगा। कोई भी पोस्चर आप कर रहे हो, कौन सा मसल पे काम कर रहा है, कौन सा मसल एंगेज हो रहा है, और उसका, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका बेनिफिट क्या है। उससे भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन नहीं कर सकता, ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं अपने जो वाणी है उसको विराम देता हूँ। जितना हो सके मैंने क्या किया कि कोई क्लास नहीं लिया, अपने थियोरिटिकली जो साइंस है, जो टिप्स है, जो अंदर का जो साइंस है, और उनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग सब करते हैं, मगर राइट तरीके से बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो, या अगर आपका एनाटॉमी नहीं जानते हो, आप फिलोसफी नहीं जानते हो, आप उनका योगा हिस्ट्री नहीं जानते हो, और इसका बेनिफिट नहीं जानते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं जानते हो, तो आप क्या जानते हो? कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको डीपली जाना पड़ेगा। योग में बहुत कुछ है, उसको आपको जानना पड़ेगा। और ये भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ कि जो भी यहाँ पर छात्रा है, जो भी स्टूडेंट है या योग शिक्षक है, जो आगे उनका जो नॉलेज है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि एसवासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, वन ऑफ द अभी का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट योग यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर आश्रमिक शिक्षा दी जाती है, उनके साथ जो मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि वहां पर दुनिया का सबसे बेस्ट लैब है, जहाँ पर सब के सब आसना, प्राणायाम, क्रिया जो भी किया जाता है, और मेडिटेशन जो भी किया जाता है, उनका लैब में भी टेस्टिंग होता है कि आपने एक मेडिटेशन किया आधा घंटा, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो वहां पर टेस्ट होता है। वहां पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री कोर्सेस है। एसवासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर। वो सेकेंड है देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार, वो भी वन ऑफ द ऑथेंटिक योग यूनिवर्सिटीज है, बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटीज है। वहां पर भी योग का डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, पीएचडी, बहुत से कोर्सेस है। और भी एक जो ऑथेंटिक योग आश्रम है, वो है बिहार योगाश्रम मुंगेर। आप वहां जा सकते हैं, वहां पर कोर्सेस है।
वहां पर रह के आपको सीखना पड़ेगा। वो भी वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक योगा ऑर्गेनाइजेशन है। और कोलकाता में जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी बेलूर, वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, मास्टर डिग्री है, इवन पीएचडी भी है। और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वीकेंड कोर्सेस भी है। आप काम करते हो कुछ भी तो आपका वीकेंड कोर्स भी आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो कुछ जो ऑथेंटिक योगा यूनिवर्सिटी और आश्रम का नाम मैंने बोला, तो आप वहाँ जाके अपना शिक्षा का जो अपना जो नॉलेज है उनको आप अपग्रेड कर सकते हो। और वहाँ का जो शिक्षा है बेस्ट ऑफ बेस्ट शिक्षा है। आप जाइए वहाँ पर सीखिए और दुनिया को आपका जो नॉलेज है वो बांटिए, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बोथ आर इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग वॉक करते हैं, एक पैर राइट पैर सामने, लेफ्ट पैर पीछे, फिर लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर। सो जैसे कि हम लोग जाते हैं एक से पैर, सो ऐसे ही थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि लेफ्ट एंड राइट लेग, लेफ्ट एंड राइट हैंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। आप प्रैक्टिकल जानते हो, थ्योरी नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो। आप थ्योरी जानते हो मगर आपने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते हो, आप आधा जानते हो। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, थ्योरिटिकल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और थ्योरिटिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राइट तरीका आपको सिखाता है थ्योरी। प्रैक्टिकल तो है मगर प्रैक्टिकल कहाँ से आता है? थ्योरी। जो राइट नॉलेज वो आपको थ्योरी से मिलता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुछ नॉलेज शेयर करके। अगर कुछ भूल हो गया हो मुझे क्षमा करना। और कीप फिट ग्रुप को बहुत बहुत आभार जो मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिया। और श्री अमोल कराड़ जी एंड प्रदत्त सिन्हा जी, उनको मेरा प्रणाम। और जो भी कीप फिट से जुड़ा हुआ है सभी मेंबरों को मेरा प्रणाम। और मोस्ट थैंक यू सो मच समरेश जी स्लाइड में हेल्प करने के लिए। और टेक्निकली आप जो काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है YSS वो भी एक युगांतकारी और एक क्या बोलते हो एक रिमार्केबल काम कर रहे हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर जो काम कर रहे हैं योग कंपटीशन में। तो आपको भी आपके और आपका ऑर्गेनाइजेशन और सभी टीम मेंबरों को मेरा बेस्ट विशेस। और बेस्ट विशेस जो ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। ओम। Thank you so much, our resource person शुभेंदु रॉय। हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा आपका जो इतना सुंदर से आप डिस्क्राइब किया है योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, मुद्रास के बारे में। आपका पास से हम लोग लॉट्स ऑफ चीज़ सीखने मिला है। मेरा ख्याल से जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो पार्टिसिपेंट्स जो भाग लिया है इसमें आपसे बहुत सारा कुछ जानकारी मिला है। तो ये जो जुगो वर्कशॉप होता है, जुगो वर्कशॉप एक्चुअली होना भी चाहिए। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग का कीप फिट ग्रुप जुगा एकेडमी है, अमल करा सर है। तो इसका उन लोग का जरिए से, कीप फिट का जरिए से अभी सारा भारत का बहुत आदमी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गया और हर वर्कशॉप में ज्वाइन कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है। आज आपको पहले मिला है, उसका पहले भी बहुत सारा आदमी लोग को मिला था। ये आप इतना अच्छा रिसोर्स पर्सन है। मेरा नमस्कार शुभेंदु बाबू, भालो থাকবেন। इतना अच्छा, थैंक यू। इतना अच्छा आप इतना अच्छा समझाया, जो लोग समझाए बहुत अच्छा तरीका से आप समझाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी देख रहा हूँ किसी का तो क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना सुंदर से बोला है, कोई क्वेश्चन करने का सुযোগ ही नहीं दिया आप। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम भी आपको कीप फिट ग्रुप से हम थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ भी वर्कशॉप होने से आपको जरूर इन्वॉल्व करेगा।
और बाकी जितना भी आपको है प्रेजेंट था, सबको मेरा तरफ से शुभकामना। गुड नाइट, बेस्ट विशेस। कल फिर आप लोग हाजिर हो जाइए, कल में बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। थैंक यू वेरी माच, गुड नाइट। अमल बाबू কিছু বলবেন? না না ঠিক আছে, ওকে ওকে। শুভেন্দু খুব ভালো ক্লাস হয়েছে। Thank you so much, হ্যাঁ দাদা। ভালো থেকো, ঠিক আছে। ঠিক হ্যাঁ, আছে, ঠিক আছে, শেষ করে দিন, ঠিক আছে, ওকে। গুড নাইট, গুড নাইট অল অফ ইউ, গুড নাইট অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।